As you know, I am currently traveling from Jammu to Singapore by road and cycle and to protect environment for future. I have taken this initiative. Today, India is second largest country in pollution. Before 2050, अर्थ पे रहना बहुत मुश्किल होने वाला है एंड इंडिया गोना प्ले अ वेरी बिग रोल इन दिस 75 ईयर्स में अलग अलग लोगों ने अलग अलग तो इसको साफ करने की कोशिश की है बट वो फेल हुए इसलिए क्योंकि साफ करके एनवायरनमेंट को नहीं बचा पाए तो वी डेफिनेटली हैव टू डू समथिंग एल्स राइट. So me as a youngster of the country, me as a future of the country, me as a root system of the country, I have taken an initiative. When I'm going to the schools, college and universities where they are doing lectures, events, mainly with below 25, 20, 25, 50 साल से एक ही काम करते आ रहे हैं, उनकी वो आदतें सुधारना मुश्किल है. मेरा टारगेट ये है कि मैं उस आदत को जो किसी कॉर्नर पे पड़ी हुई है उसको पूरे दिमाग में फैलाना. बिना कुछ किए अगर हम कर सकते हैं तो इतना तामझाम करना क्यों है. Hello and a very good morning everyone, this is Vijay Bhaskar. As you know, I am currently traveling from Jammu to Singapore by road and cycle and I'm going to cover 5 countries and around 30 to 40,000 kilometers of distance in this journey. But today I'm not here to talk about this journey, I'm here to clear something. Like a lot of people think that I'm traveling for fun, to explore the country, explore the world. Yeah, it may be a secondary part of this journey, but mainly I'm traveling to protect environment for future. I have taken this initiative. Like as you can see this board behind my cycle. So like now some people are like how you protecting environment for future by paddling cycle. So look my friend, it's been 75 years of independence and in this 75 years different peoples from different time, different ideas, they tried to clean this country. They tried to save environment, to protect environment, to save earth, but they got failed. सच है, कड़वा है पर सच है क्योंकि today India is second largest country in pollution and population as well, and this is really sad for us because India is contributing more than whole world. Like according to WHO, not India actually, आने वाले कुछ सालों में 20-22 सालों में लाइक बिफोर 2050 अर्थ पे रहना बहुत मुश्किल होने वाला है एंड इंडिया गोना प्ले अ वेरी बिग रोल इन दिस. 75 ईयर्स में अलग अलग लोगों ने अलग अलग तो इसको साफ करने की कोशिश की है बट वो फेल हुए इसलिए क्योंकि सबने इसको साफ करने पे कोशिश किया, सबने इसको साफ करने पे काम किया. लाइक सपोज यू क्लीन दिस पाथ एंड यू मूव्ड एंड समबडी केम एंड उसने अपना ट्रैश वहाँ फेंक दिया, एक चिप्स का पैकेट फेंक दिया, तो उसको साफ करने का रीज़न क्या हुआ, फ़ायदा क्या हुआ, तो वो तो गंदा ही है. तो अगर वो साफ करके फेल हो गए, साफ करके एनवायरनमेंट को नहीं बचा पाए तो वी डेफिनेटली हैव टू डू समथिंग एल्स राइट. सो मी एज अ youngster of the country, me as a future of the country, me as a root system of the country, I have taken an initiative to protect environment for future, in which what I do is I go to schools, college, universities, and there I talk to students, mainly with the students who is below 25, about trash management, garbage control, like how we can keep this country clean in future, for future. It's not to clean, is to keep clean. Keep clean is very important. Like our elders got failed because they were cleaning this country. So तो अगर वो साफ करके नहीं सक्सेसफुल हुए तो हमने इनिशिएटिव लिया है साफ रखने का. तो when I'm going to the schools, college and universities where they are doing lectures, events, mainly with below 25, the root system, the youngster, the foundation of the country. क्योंकि look, what I personally feel is I may be wrong, I'm not wrong, कि जो हमारे बड़े हैं जो फेल हुए हम उनको नहीं सुधार सकते क्योंकि जो लोग 20, 25, 50 साल से एक ही काम करते आ रहे हैं उनकी वो आदतें सुधारना मुश्किल है. नामुमकिन नहीं लेकिन सुधारना बहुत मुश्किल है. बट हम वी यूथ, वी द चिल्ड्रंस, द किड्स, हम लोग वही चीज़ कर रहे हैं. स्कूल्स में करते हैं, अपने स्कूल में हमने कुछ भी पेज फाड़ा या चिप्स का बिस्किट हम डस्टबिन में ही फेंकते हैं. हम उसको कहीं पे ग्राउंड में या स्कूल कॉरिडोर में या क्लास में नहीं फेंकते, है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं दिमाग में एक कॉर्नर पे ही है पर वो कोडिंग भी है ना, कि कचरा डस्टबिन में ही फेंकना है. हम लोग क्या करते हैं स्कूल से निकलते वक्त वो जो कॉर्नर पे है उसको बंद कर देते हैं और बाकी का सेंसेशन चालू करते हैं, बाकी चीज़ चालू हो जाती हैं तो रोड पे फेंकना चालू कर देते हैं, है ना. तो मेरा टारगेट ये है कि मैं उस आदत को जो किसी कॉर्नर पे पड़ी हुई है उसको पूरे दिमाग में फैलाना.
यहाँ से उठा के इस घर तक लेके जाना, स्कूल से घर तक, कॉलेज से घर तक, बाकी जितनी भी चीज़ें होती हैं इन दोनों के बीच में आती हैं, चाहे वो खेलना हो, शॉपिंग हो, मूवी हो, मॉल हो, ऑफिस हो, फलाना हो, ढमकाना, सब इस स्कूल, कॉलेज और घर के बीच में आते हैं। तो जिस दिन वो आदत यहाँ से उठ के यहाँ तक पहुँच गई, इट मे टेक टाइम, हो सकता है 2 साल लगे, 3 साल लगे, 4 साल लगे, 5 साल लगे, हो सकता है 10 साल लग जाए, पर जिस दिन सबके दिमाग में एक माइंडसेट बन गया कि वी हैव टू कीप दिस कंट्री क्लीन, हमें अपना कचरा सिर्फ डस्टबिन में ही फेंकना है। तो सोचो, जो आपने कल कर दिया है, आपने जो कल कचरा फेंक दिया रोड पे, उस पर कंट्रोल नहीं है, जो आपका कल हो चुका उस पर कंट्रोल नहीं है, लेकिन जो आप कल कचरा रोड पे फेंकने वाले हो उस पर आपका पूरा कंट्रोल है। तो आपने अगर वो कचरा डस्टबिन में फेंका है ना, तो अल्टीमेटली आपने बिना कुछ किए, आप सबने अपने देश को आपको साफ नहीं करना पड़ा, अपने सिटी को साफ नहीं करना पड़ा, आपने बिना कुछ किए आपने उसको साफ कर दिया, राइट? बिना साफ किया आपने साफ रखा ना। तो बिना कुछ किए अगर हम कर सकते हैं तो इतना तामझाम करना क्यों है? दिस इज अ रॉ ट्रैश, या इट्स ओके। लाइक आई हैव अ स्लोगन, बहुत कर लिया बड़ों ने, अब हम बच्चों की बारी है। तो बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि अगर बड़े नहीं कर सकते बच्चे कैसे कर सकते? तो बड़े भी कर सकते हैं ना। वो क्यों नहीं कर सके, मैं उसके पीछे का रीज़न बताता हूँ। देखो, जो भी होता है उसके पीछे एक रीज़न होता है। तो जो हमारे बड़े हैं, हमारे एल्डर्स, उनको कभी किसी ने नहीं बताया कि इसको साफ रखना है, डस्टबिन में फेंकना है, इतना फोकस नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? उसके पीछे ये रीज़न है। पहले एक नैरेटिव था कि कच्चा आप डस्टबिन में फेंको या रोड पे फेंको, बात एक ही है, क्योंकि वो उठ के एक पहाड़ी बनना है, कोई यूज़ नहीं था उसका। बट टुडे हमने उसके आइडियाज़ निकाल लिए हैं। देखो, कल आप कच्चा कहीं फेंकते एक पहाड़ बनता था, बट आज अगर आपने कचरा डस्टबिन में फेंका, वो एक सिस्टम से होके फैक्ट्रीज तक जाता है और उस कचरे से आज रोड बन रहा है, सीमेंट बन रहा है, बहुत सारे फर्टाइल चीज़ें बन रही है, जैसे कि खाद बनती है, बहुत सारी चीज़ें बन रही है आज। तो आज आप उस कचरे को एक जगह एडजस्ट नहीं कर रहे, एक जगह सेटल नहीं कर रहे, उसके साथ उसको ख़त्म भी कर रहे हो। आज वो पहाड़ नहीं बनेगा अगर आपने उसको एक सिस्टमेटिकली डस्टबिन में फेंका। तो आज वो कचरा जाकर कहीं पर डंप नहीं होगा, आज वो यूज़ होगा, है ना। वी ऑल नो, हमने सबने साइंस में पढ़ा है कि प्लास्टिक ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन सोचो अगर उस प्लास्टिक से रोड बन गया तो अल्टीमेटली आपने उस प्लास्टिक को ख़त्म किया कि नहीं 100 साल के लिए, है ना। मैं डीप में नहीं जाऊंगा अभी इस वक्त पे, बट व्हाट आई विल से इज, इंस्टेड ऑफ क्लीनिंग दिस कंट्री, स्प्रेड द अवेयरनेस अबाउट टू कीप दिस कंट्री क्लीन। जिस दिन आपने साफ रखना चालू कर दिया, आपको साफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, जैसे हम लोग अपना रोज़ घर साफ करते हैं, वो एक सेकेंडरी पार्ट है, वैसा आपको हमेशा करना पड़ेगा। पर जो मेजरली रॉ ट्रैश है वो आपका आराम से ख़त्म हो सकता है। या देयर इज हेल लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट, ऑफ पोल्यूशन, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, सो मेनी पोल्यूशंस आर देयर। बट इन दिस जर्नी आई हैव टेकन द फर्स्ट स्टेप into protect environment। मैं सिर्फ रॉ ट्रैश को ख़त्म करके एनवायरनमेंट सेव नहीं कर सकता, बट एक पहला कदम लिया है मैंने, एक पहला पड़ाव की शुरुआत की है। मैंने सोचा है कि मैं पहले पूरे कंट्री में मैं घूम रहा हूँ, जिससे मैं 2 चीज़ कर रहा हूँ। पहला चीज़ कि मैं रूट सिस्टम से कनेक्ट होके मैं एक अवेयरनेस फैलाने की कोशिश कर रहा हूँ, इन विच आई हैव टिल नाउ आई हैव कवर ऑलमोस्ट 700 to 800 स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, जिसमें मैंने लेक्चर इवेंट्स किए हैं। तो अभी मैं एक स्प्रेड अवेयरनेस फैलाने के साथ साथ मैं ये भी देख रहा हूँ कि मुझे कहाँ पे कितना काम करने की ज़रूरत है, कहाँ पे क्या माइंडसेट है और कैसे करने की ज़रूरत है। एंड मैं हर एक स्टेट में कोशिश कर रहा हूँ कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स बनाऊँ, कुछ ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट हो जाऊँ। जब मैं यहाँ सिंगापुर जाऊँ और सिंगापुर से वापस आऊँ और मैं जब अपनी फाउंडेशन लॉन्च करूँगा, बिकॉज आई हैव प्लान्ड टू लॉन्च अ फाउंडेशन विच विल वर्क ऑन एनवायरनमेंट ओनली आफ्टर कमिंग बैक टू सिंगापुर, और उसका मेन काम ही होगा एनवायरनमेंट पे काम करना। तो जब वो फाउंडेशन लॉन्च होगी तो हर एक स्टेट में हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे एंड वी ऑल टुगेदर विल टॉक अबाउट एवरी सिंगल एस्पेक्ट ऑफ पॉल्यूशन। तो पहले कहीं से शुरुआत करनी पड़ती है, तो वो हमारी ये शुरुआत है, टू कनेक्ट विद एवरीवन, टू स्प्रेड एट ग्राउंड लेवल, थोड़ा अवेयरनेस फैलाएं। उसके बाद जब हमारा एक थोड़ा मेरे को हो जाएगा कि हाँ मैं इतना कवर कर चुका हूँ, इतना घूमा हूँ, मुझे इतना पता है कि यहाँ पे इतना काम करने की जरूरत पड़ेगा। Like Indore is very clean city of the India, one of the cleanest city of the India. Like पिछले 5 सालों से उसको अवार्ड मिल रहे हैं, and as well as Vapi is one of the polluted state of the city of the India.
तो हमें पता है कहाँ पे कितना काम करना है, कहाँ के लोगों का क्या माइंडसेट है। एंड एक चीज़ और बता दूँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वाई यू गोइंग टू सिंगापुर इफ़ यू वांट टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट फॉर फ्यूचर, सो यू शुड वर्क ऑन इंडिया ओनली। या आई शुड वर्क ऑन इंडिया ओनली। लुक माई फ्रेंड, आई एम 19 years old और मुझे जितना पता है मैं उसके हिसाब से ही काम कर सकता हूँ। लाइक वी गो टू स्कूल्स टू एक्वायर मोर नॉलेज। तो आप स्कूल में ही क्यों जाते हो पढ़ने के लिए? If they are master, your teachers are the master, your teacher are supreme in that knowledge. Same as Singapore is one of the cleanest country in the world. So I wanna go to Singapore and I wanna learn, I wanna just experience, I wanna observe what they think कि सिंगापुर के लोगों का क्या माइंडसेट है, उनकी गवर्नमेंट क्या अप्लाई करती है, वो लोग किस तरह से डिफरेंट एक्सपेक्ट के पोल्यूशन, डिफरेंट कचरे को मैनेज करते हैं। सो आई वांना लर्न दैट एंड देन कम बैक टू इंडिया एंड आई वांना उसको मुझे अपने फाउंडेशन में इम्प्लीमेंट करना है कि हाँ इस तरह से अगर वो करें तो हम भी उसमें से कुछ चीज़ें सीख सकते हैं, ये चीज़ें हम भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। लाइक आई वाज इन इंदौर, तो मुझे इंदौर की चीज़ें सीखनी है कि हाँ मुझे इंदौर के लोग क्या कर रहे हैं, किस तरह से वो लोग साफ रख पा रहे हैं। तो जब तक आप सीखोगे नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते। तो मुझे सीखने जाना है वहाँ पे, इसलिए मैं जा रहा हूँ। तो अगेन आई विल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, अगर कोई टीचर्स देख रहे हैं, कोई स्कूल से रिलेटेड देख रहे हैं, कोई पेरेंट्स देख रहे हैं इस वीडियो को, तो अपने बच्चों को ये मत सिखाओ कि इसको साफ करना है आपको, नहीं बस ये सिखाओ कि साफ रखना है, कैसे रख सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आप अपना गली मोहल्ला साफ नहीं कर सकते रोज, अपना कुछ भी साफ नहीं कर सकते, बट हाँ एक चीज़ आप कर सकते हो, साफ रख सकते हो। एक छोटा सा कदम भी उठाओ ना, आप अपने एक छोटा सा काम करो, अपने हिस्से का जो कचरा है वो डस्टबिन में फेंको, बस इतना सा काम, कुछ नहीं करना है। हम लोग स्कूल्स में ये करते ही हैं, बट बड़े क्या करते हैं, रोड पे जो पहले तो सभी रोड पे फेंकते हैं, लेकिन जो कुछ ज़्यादा समझदार हैं वो खाली रोड देखते हैं वहाँ फेंक देते हैं कि हाँ हमने तो नहीं करना है ऐसा। आजकल सबके इतनी पॉकेट्स है कि आप 5 मिनट तो अपने पॉकेट में अपना कचरा रख सकते हो, और हर दूसरी जगह पे आपको डस्टबिन मिलेगा, एक छोटी चाय की टपरी पे भी मिलेगा। तो ठीक है, इतना ही कहना था। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड होपफुली इतने लंबे चौड़े भाषण तो नहीं कहूँगा, कुछ चीज़ें थी जो आपसे शेयर करना चाहता था तो कर दी मैंने। होपफुली इसका कुछ तो फ़ायदा होगा, और इसे शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, और नहीं भी शेयर करना है तो एटलीस्ट अपने लेवल पे अपने छोटों को सिखाओ कि कचरा कैसे मैनेज करना है, कैसे ट्रैश मैनेज करना है, कैसे साफ़ रखना है, साफ़ करना नहीं है। तो आखिरी में बस यही कहूँगा कि बहुत कर लिया बड़ों ने, अब हम बच्चों की बारी है। तो लेट्स शो द पावर ऑफ यूथ।